رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تحریک سے ہوشیار یہ تاریک اجالا ہے۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان سبھی کی گنتی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اتنے بے شمار مخلوقات اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں جس کی گنتی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ 3 مخلوق ایسے پیدا فرمائے جو مکمل عقل والے ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے مکمل عقل رکھی ہے، وہ 3 طرح کے مخلوق ہیں۔ پہلا مخلوق اس کو انسان کہتے ہیں۔ انسان مکمل عقل والا مخلوق ہے، اس کے اندر پوری کی پوری عقل ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے خصوصیات انسان کے اندر موجود ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ انسان میں سب سے پہلے جس انسان کو اللہ نے بنایا اس کو آدم کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے آج یہ دنیا چل رہی ہے۔ جب انسان کو بنایا گیا اور اس کے لیے مٹی کو گوندا گیا اور انسان کا پتلا اس سے تیار کیا گیا، تو جس گارے کو تیار کیا گیا تھا، جس گارے کو گوندا گیا تھا انسان کے پتلے کو بنانے کے لیے، اس میں سے کچھ مٹی بچ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، اس میں سے کچھ مٹی بچ گئی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ حکم ہوا کہ یہ پتلا جہاں پر آدم کا لیٹا ہوا ہے اسی کے نیچے اس مٹی کو دفن کر دو۔ جب اس گوندی ہوئی بچی ہوئی مٹی کو دفن کر دیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس سے ایک درخت نکالا جس کو کھجور کا درخت کہا جاتا ہے۔ بہت قیمتی درخت ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے اس سے کھجور کے درخت کو نکالا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان کے بدن میں جتنے وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وٹامنز کھجور کے اندر موجود ہے، کیونکہ انسان کی بناوٹ میں جو مٹی پیدا کی گئی تھی اور جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا تھا اسی بچی ہوئی مٹی سے اس کھجور کو تیار کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سارے کے سارے وٹامن اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ کھجور کے اندر مکمل طور سے پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سارے جہاں کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم سحری میں بھی اور افطاری میں بھی کھجور کھایا کرو۔ آقا نے فرمایا کہ سحری میں بھی کھجور کھاؤ اور افطاری میں بھی کھجور کھاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آقا نے فرمایا کہ کھجور کو کھاؤ تاکہ تمہارے بدن میں قوت آئے، تمہارے بدن مضبوط ہو۔ کتنی پیاری حکمت ہے اللہ کی اس میں، اور اللہ کے رسول نے کتنا پیاری سنت ہم کو بتایا کہ کھجور کو کھاؤ۔ کھجور کی بڑی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اس کو نہلایا جائے، نہلانے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اور تیسرا جو کام بتلایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک کھجور کو لیا جائے اور اس کو کسی بزرگ اور کسی نیک انسان سے چبوا کر اس بچے کے تالو میں تھوڑا سا چپکا دیا جائے، اس سے بچہ ذہین ہوگا۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ جس بچے کے تالو میں اس کھجور کو چپکا دیا جاتا ہے وہ بچہ کن ذہن نہیں ہوتا ہے، وہ بچہ عقل والا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں اور اپنے بیٹوں سب کے تالو میں کھجور کو خود بخود آقا نے چبا کر وہ چپکایا تھا۔ کتنی پیاری سنت ہے آقا کی۔ آج ہم سے چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں اور ہم آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہم چاہتے تھے وہ بن نہیں پایا، وہ بگڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہم ہی ہے کہ ہم نے آقا کے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اتنی پیاری حکمت اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتلائی کہ ایک معمولی سے کھجور کو چپکا دیا جائے اگر اس بچے کے تالو میں کسی نیک انسان سے، تو اس نیک انسان کا اثر اس بچے کے اندر اتر جایا کرتا ہے۔ آقا کی ایک ایک سنتیں ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ایک سنتوں میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔
बहरहाल जिस मिट्टी को गूंदा गया था इंसान के पुतले को बनाने के लिए, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की इब्तिदा फरमाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान जो थे वो पैदा किए गए, जिनको आदमी कहा जाता है। इंसान को मुकम्मल अक्ल वाला बनाया गया और वहीं से जो है इंसानियत की इब्तिदा हुई और सारे के सारे इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सब के सब उन्हीं की औलाद हैं और सबका सिलसिला वहीं से चला। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे नंबर पर जो मुकम्मल अक्ल वाली मखलूक को बनाया, ये बड़ी खतरनाक मखलूक बनाई। इस मखलूक को अल्लाह ने आग से बनाया। ये दूसरे नंबर पर मुकम्मल अक्ल वाली अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इसको आग से बनाया। इनको जिन कहते हैं, जिन्नात कहते हैं। ये हमें नजर नहीं आते, ये बड़ी जबरदस्त मखलूक है अल्लाह की, बड़ी खतरनाक मखलूक है अल्लाह की। ये हमें आंखों से हमारे ओझल है, ये नजर नहीं आते। जिस तरह से वायर में करंट होता है हमें नजर नहीं आता, इसी तरीके से जिन्नात हमको नजर नहीं आते। अच्छा, सबसे पहले जिस इंसान को बनाया गया उसको तो आदम कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जिस जिन्नात को अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाया उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? कुरान में आता है वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। सबसे पहले जिस जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया उसका नाम जान है, उसको जान कहते हैं। फिर उसी से करोड़ा करोड़ लाखों लाख जिनों जिन्नात बनाए गए। शैतान भी इसी से है, शैतान इसी के औलाद में से है, उसको भी आग से बनाया गया। ये अलग बात कि उसमें कुछ सर्कस निकल गए। जिस तरह इंसानों में कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, ये फितरी चीज है, इस तरीके से उनकी नस्ल में भी कुछ लोग अच्छे थे और कुछ लोग बुरे थे, उसी की नस्ल में से ये जिन्नात है, ये शैतान है। अब मसला ये है कि ये जो मखलूक हमको नजर नहीं आती ये तो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, उसका भी इंतजाम अल्लाह ने फरमा दिया। सारे जहां के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारे के सारे नुस्खे हमें देकर गए कि ये जो नजर ना आने मखलूक है, नजर ना आने वाली मखलूक है, इससे हमको कैसे बचना है। क्योंकि जब हम बैतुल खला के अंदर जाते हैं, अपनी सतर को खोलते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। जब हम अकेले में कपड़ा बदलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ये नजर ना आने वाली मखलूक उस बैतुल खला के अंदर भी मौजूद होती है, तो बताइए उससे हमारी हिफाजत कैसे होगी। वो तो हमारे सतर को देख लेगा, वो हम पर हमला कर देगा, उससे हमें कैसे बचाव करना है उसका इंतजाम फरमाया। आका ने फरमाया कि जब बैतुल खला में जाओ तो कहो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि अल्लाह मैं तेरे नाम से शुरू कर रहा हूं और अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं उन मखलूकात से जो औरत भी हो चाहे मर्द भी हो, तमाम के तमाम खबीस लोगों से मैं आपकी हिफाजत चाहता हूं। अब आपको अल्लाह की पनाह हासिल हो गई, अब आप जैसे चाहिए अपने सतर को खोलिए, अल्लाह की अमान में आप हैं, आप अल्लाह की पनाह में हैं, अल्लाह आपको अमान देगा। उसके बाद अपने आप हजत पूरी कीजिए। कितना प्यारा नुस्खा आका ने बतलाया कि नजर ना आने वाली मखलूक से अगर आपको बचना है तो इन नुस्खों को आजमाइए। शैतान सबसे ज्यादा उसी जगह पर हमला करते हैं, ये नापाक जगहों पर रहा करते हैं और इंसान के ऊपर हमला कर देते हैं। और इंसान कहता है कि शैतान ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये हमला शैतान ने खुद नहीं किया बल्कि तूने खुद करवाया है, क्योंकि तूने आका की सुन्नत को नहीं माना। जब तू बैतुल खला के अंदर गया तो आका की सुन्नत को नहीं माना, आका ने जो दुआ तुझको सिखलाई वो दुआ तू नहीं पढ़ा और आज तेरा ये हाल हो गया है। बसा औकात देखा जाता है कि लोग एक नौजवान को लेकर आते हैं और बताते हैं कि बस पेशाब करने गया था और पेशाब करने के बाद उसकी ये हालत हो गई है, उसको जिन्नात ने पकड़ लिया है, भूत ने पकड़ लिया है, सारी की सारी चीजें आती हैं। उसको जिन्नात और भूत ने नहीं पकड़ा बल्कि उसने खुद से पकड़वाया है, उसने आका की सुन्नत को नहीं माना। इस नजर न आने वाली मखलूक से जो आका ने तरीका बतलाया था उस तरीके को उसने नहीं माना और इसी वजह से उसका ये हाल हो गया। तो हमें और आपको गौर करना चाहिए कि ये जो नजर न आने वाली मखलूक है इससे हमारी हिफाजत कैसे होगी। ये सारी चीजें जब पैदा हो जाती हैं तो उसके बाद आदमी क्या करता है, जाता है किसी ढोंगी बाबा के पास, पहुंचता है, वो भी बड़े नालायक किस्म के होते हैं। अगर औरत गई है तो कह देता है कि तुम्हारी बहू ने करवा दिया है, तुम्हारी ननद ने करवा दिया है, तुम्हारी भौजाई ने करवा दिया, वगैरह वगैरह बोल के और झगड़ा करवा देता है और पैसा ऐठ लेता है। अगर कोई मर्द गया है तो कह देता है तुम्हारे भाई ने करवा दिया है, तुम्हारे पड़ोसी ने करवा दिया है। ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं, लेकिन ये ढोंगी लोगों को नहीं
पता है कि ये इसने करवाया नहीं है, बल्कि इसने खुद अपने ऊपर किया है। इसने आका की सुन्नत को नहीं माना, इस वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। अगर ये आका की सुन्नत को माना होता, बैतुल खला में जाते वक्त इस बात का ख्याल किया होता कि यहाँ पर जो है नजर न आने वाली मखलूक मौजूद होती है और वो हम पर हमला कर सकती है, अगर वो दुआ को पढ़ लिया होता, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो उसका ये हाल नहीं होता। ये शैतान जो है इंसान के ऊपर जादू करता है। ये नजर न आने वाली मखलूक बड़ी जबरदस्त है, बड़ी खतरनाक मखलूक है। जब हम और आप सो जाते हैं तब ये आता है और हमारे ऊपर जादू करता है। जादू के अल्फाज भी अल्लाह के रसूल ने हदीस में बतलाया। शैतान जब इंसान सो जाता है और सुबह होने वाली होती है तो उसके पास आके बैठ जाता है, खूब मोहब्बत से बैठता है और उसके ऊपर हाथ रख के कहता है, हदीस में अल्फाज हैं, अलैका लैलुन तवीलुन, अलैका लैलुन तवीलुन, अलैका लैलुन तवीलुन, तेरे ऊपर रात लंबी हो जाए, अच्छे से सोता रहे, अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी बहुत टाइम है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इंसान सो जाता है, इंसान को ख्याल आता है कि अभी बहुत टाइम बाकी है, और उससे होता क्या है, हदीस में आता है कि 3 गिरहें इंसान के ऊपर लग जाती हैं। उस वक्त 3 गिरहें लग जाती हैं। अगर वो इंसान उठकर खड़ा हो जाए और शैतान को झिड़क दे कि नहीं अभी फजर का वक्त है, तो 1 गिरह खुल जाती है। उसके बाद अगर वो शैतान को झिड़क दे और वजू कर ले तो 2 गिरहें खुल जाती हैं, और अगर वो फजर की नमाज पढ़ ले तो 3 के 3 गिरहें खुल जाती हैं और शैतान का जो जादू होता है वो कट जाता है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया और सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई, तो उस शैतान के जादू का असर इस कदर उसके ऊपर होता है, इस कदर उसके ऊपर होता है कि उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। उसके बाद वही पुराना रवैया, पहुंच जाता है नुजूमी बाबा के पास, किसी ने कुछ करवा दिया, बदन बोझल महसूस हो रहा है, लगता है किसी ने मुझको दबा दिया है, किसी के दबाव का असर हो रहा है, काम धंधे में दिल नहीं लग रहा है, दुकान से कुछ बिक नहीं रहा है। तूने आका की सुन्नत को छोड़ा और नुजूमी बाबा के पास पहुंच गया कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है। तुझे पता नहीं कि तुमने सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ी और तुमने जो है शैतान के जादू का असर अपने ऊपर कर लिया है। हदीस में इन सारी चीजों का नुस्खा बताया गया है कि शैतान किस तरह से जादू करता है। अगर आपने उसके जादू को तोड़ दिया, उठकर आपने वजू किया और फजर की नमाज अदा की, तो किसी शैतान का जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अल्लाह के हबीब ने कितने प्यारे प्यारे नुस्खे हमें बताए हैं, लेकिन हम और आप उस पर अमल नहीं करते, लगे रहते हैं इन्हीं बाबाओं के चक्कर में। याद रखिए कि आप करोड़ों ताबीज पहन लें, 1 करोड़ लीटर में आप फलीता जला लें, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है जब तक आप आका की सुन्नतों पर अमल नहीं करेंगे। आप सहाबे किराम को देखिए, किसी सहाबी ने फलीता नहीं जलाया, किसी सहाबी ने ताबीज वगैरह नहीं पहनी इस तरह से जिस तरह से आज हम पहन रहे हैं। उसकी वजह यह थी कि वो सुन्नतों पर अमल करते थे, वो आका की बताए हुए तरीके पर चलते थे, कोई जिन्नाती असर नहीं होता है। हम और आप भी तो उन्हीं की तरफ बशर हैं, हमारे ऊपर कहां से असर हो जाता है। तब कहने को मिलता है कि जिन्होंने करा दिया उन्होंने करा दिया। हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान दिन में 3 मरतबा, सुबह के 3 मरतबा सूर्य फलक पढ़ ले, 3 मरतबा सूर्य नास पढ़ ले और 3 मरतबा सूर्य इखलास पढ़ ले, सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, मगरिब के वक्त, और उसके बाद रात में पढ़े, अगर ये अमल इंसान रोजाना करता है तो किसी भी जादू का असर उसके ऊपर नहीं होने वाला है। 3 मरतबा सूर्य फलक पढ़े, 3 मरतबा सूर्य नास पढ़े और 3 मरतबा सूर्य इखलास पढ़े। कितना मामूली सा अमल है, लेकिन इस अमल के बारे में चैलेंज करके आका ने कहा है कि जो इंसान इस अमल को कर लेगा उसके ऊपर किसी जादू का असर नहीं होने वाला है, उसको किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना उसका झोला भरने की जरूरत है। जानवर, बिच्छू, कीड़े मकोड़े उसके सामने से सब ऐसे ही गुजर जाएंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बताइए, इतना आसान नुस्खा और इतना कारगर और इतना जबरदस्त नुस्खा कौन हमको बता सकता है इस दुनिया में? वो वाहिद शख्सियत है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने हमें कितने प्यारे प्यारे नुस्खे बताए हैं, बस अमल की जरूरत है, हम अमल से दोचार नजर आते हैं। फरमाया औरतों को कि अपने बाल को मत खोला करो, क्योंकि ये शयातीन जो होते हैं, ये जो नजर आने वाली मखलूक है, ये बालों से सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि हुजूर के ऊपर, हुजूर के बालों को भी ले जाया गया था जादू करवाने के लिए। आज देखने को आता है कि हमारी औरतें बालों को खोले हुए इधर से उधर दौड़ती भागती नजर आती हैं, बाजारों में दुपट्टा हटाकर बाल खोलती हुई नजर आती हैं, उसके बाद बीमार होती हैं और परेशान होती हैं और चली जाती हैं नुजूमी बाबा के पास, इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, दुनिया के खुराफात नजर आते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि किसी
ने कुछ करवाया धरवाया नहीं है, जो तुम बेलगाम घोड़ी की तरह इस तरह से अपने बालों को खोलकर और लहरा कर बाजार में चल रही थी, ये उसी का असर तुमको मिला है। क्योंकि आका ने फरमाया था कि ये बाल तुम्हारा पर्दा है, तुम अपने बाल को छुपा कर रखो, अपने पल्लू में उसको छुपा के रखो। तुमने खोला और जिन्नात और शैतान ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया। अब तुम जाके कह रहे हो कि फला ने करवा दिया, फला ने करवा दिया। सब क्या है? ये हम अपने आका और रसूल के सुन्नत को छोड़ने की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। आका ने कहा कि बालों को अपने छुपा लो और हमने खोल दिया और शैतान ने असर कर दिया। ये नजर न आने वाली मखलूक ऐसे ही असर किया करती है। औरतों को बतलाया कि ये जो किताबों में आता है कि ये जो बाल में तुम कंघा करती हो ना, और जो बाल टूट के गिरते हैं और कंघी में फंस जाते हैं, इसको भी इस तरह से बेजा मत बहाया करो, क्योंकि इस पर भी शयातीन असर ढाते हैं अपना। तुम इस बाल को इकट्ठा रख लिया करो और रखने के बाद एक थैली में जमा कर लिया करो। जब वो ज्यादा हो जाए तो तुम उसको दफन कर दिया करो, इससे तुम शयातीन के शर से महफूज रहोगी। लेकिन हमारी औरतें क्या करती हैं कि उन बालों को उठा के रख लेती हैं और गांव में एक आदमी आता है और चिल्लाता है कि बाल बेचो, बाल बेचो, और वो बेच कर चट्टा खा लेती हैं। अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही हैं, खुद शैतान को बुला रही हैं और उसके बाद कहती हैं फला ने करवा दिया, फला ने करवा दिया। ये नाजायज और हराम काम है इस तरह से कि हम और आप अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़े और दूसरों के ऊपर भरोसा करें। बाबाओं के ऊपर जाकर हम भरोसा करते हैं, आका की सुन्नत को छोड़कर हम अपने ऊपर खुद सारी चीजों को करवा रहे हैं। कोई हमारे ऊपर जादू नहीं करता है, कोई असर नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करवाता है। ये सब का सब जो है हम और आप खुद करते हैं। जब हमारी औरतें दुपट्टा खोलकर घूमेंगी और अपने बालों को इधर से उधर फेंकेंगी तो जाहिर सी बात है ये जो नजर आने वाली मखलूक है, जो हमारी आंखों से ओझल है, हमको नजर नहीं आती है, जरूर जरूर हमारे ऊपर हमला करेगी। हदीस में आता है कि छेद के अंदर, सुराख के अंदर पेशाब मत करो, हड्डी के ऊपर पेशाब मत करो, कोयले के ऊपर पेशाब मत करो, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें इंसान शैतानों की गिजा है, जिन्नातों की गिजा है। हड्डी कोयला ये सब जिन्नातों की गिजा है। अगर आप उनका खाना खराब करेंगे और ऐसी चीजों पर पेशाब करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो हमें और आपके ऊपर असर ढाएंगे अपना और परेशान करेंगे। फिर हम कहेंगे फला ने करवा दिया है, फला ने करवा दिया है। कितना प्यारा प्यारा नुस्खा आका ने हमें बतलाया और कितनी कितनी चीजों से हमको आगाह किया। ऐसा कोई नहीं है जो हमको इतने प्यारे प्यारे नुस्खे बतलाए, लेकिन हम और आप गुमराही में जा रहे हैं। आका की सुन्नतों से ज्यादा दूसरों के ऊपर हम भरोसा करते हुए जा रहे हैं। खड़े होकर पेशाब मत करो, इससे भी मना फरमाया कि इससे भी शयातीन असर ढाते हैं, क्योंकि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से होता है। और हम खड़े होकर, आज हमारे मुसलमान बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, टाइट टाइट खूब कड़ा हुआ जींस पहनते हैं और उसके बाद जब उस जींस को पहन लेते हैं तो बैठने के काबिल नहीं रह जाते और खड़े होकर, आजकल तो अंग्रेजी इस्तिंजा खाना भी बना दिया गया है, वो इसी वजह से बनाया गया है कि ये टाइट जींस वाले जो हैं वो वहीं पे जाके खड़े होकर पेशाब करें। इससे भी जब पेशाब का कतरा हमारे कपड़े पे गिर जाता है और बचा रहता है तो शैतान आता है उस पेशाब के कतरे की इस्तकबाल करने के लिए, और जब देखता है तो उसके ऊपर असर ढाता है और कूदता फांदता चिल्लाता है। तब वो कहता है कि मेरा बच्चा तो इंजीनियर था, किसी से मेरे बच्चे की कामयाबी देखी नहीं गई और लगा मेरे पड़ोसन ने कुछ करवा दिया इसके ऊपर। नहीं, ये किसी पड़ोसन ने नहीं करवाया, उसने आका की सुन्नत को नहीं माना। एक बुजुर्ग थे, उनका एक हिंदू ड्राइवर था, उसने उन बुजुर्ग से आकर कहा कि हमें कुछ बता दीजिए, कुछ दुआ वगैरह कर दीजिए, मैं बहुत परेशान रहा करता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता हूँ, इतनी दवाएं खा लिया लेकिन मेरा मर्ज, मुझको आराम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कोई नुस्खा बताइए। उन बुजुर्ग ने उससे कहा, उस गैर मुस्लिम भाई से कहा कि तुम जब पेशाब किया करो तो उस वक्त पानी ले लिया करो, बस। उसको इतना सा नुस्खा दे दिया कि जब तुम पेशाब किया करो तो पानी ले लिया करो। अब वो गया और जब जब पेशाब किया उसने जब जब पानी से अपनी शर्मगाह को धुला, और कुछ महीनों के बाद जब उस बुजुर्ग के पास वापस आया तो उसने कहा वाह रे वाह, आपने तो अजीबो गरीब नुस्खा बना दिया, इतने ज्यादा हमने दवाइयाँ खाई, लाखों की मैंने दवा करा दिया, आज तक मुझे आराम नहीं मिला, लेकिन मैंने सिर्फ पेशाब के बाद पानी लिया और मुझे इस कदर राहत, इस कदर आराम कि सारी की सारी मेरी दवाइयाँ बंद हो गई। वाकईतन
आप देखिए कि हुजूर का बताया हुआ नुस्खा है कि पेशाब करने के बाद मुसलमानों को हुक्म है कि वो पानी ले लिया करें, पानी ना मिले तो ढेला ले लिया करें या कोई सूखने वाली चीज से पोंछ लिया करें। इस कदर प्यारा नुस्खा आका ने बतलाया, लेकिन हम भूल गए, उस गैर मुस्लिम ने इस्तेमाल किया और उसके सारे मर्ज दूर हो गए। तो सोचिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कितने मर्ज दूर हो सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके आका सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के नबी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके नबी हैं। जो भी उनके फार्मूले को अपनाएगा, जो भी उनकी सुन्नत को अपनाएगा, उसको मुकम्मल तौर से फायदा हासिल होगा, उसको मुकम्मल तौर से फायदा हासिल होगा। लेकिन हम और आप अपने होकर अपने आका की सुन्नत को नहीं मानते, गैर हमारे आका की सुन्नतों को ले जा रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, और हम ढोंगी बाबा और पुजारियों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि उन्हीं से हमको आराम मिलेगा। तो ये एक मखलूक अल्लाह ने बनाई जिसको आग से पैदा फरमाया। ये बड़ी खतरनाक मखलूक है, इससे अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। और एक मखलूक जो अल्लाह ने पैदा फरमाई उस मुकम्मल अक्ल वाली, वो नूर से पैदा फरमाया, जिनको फरिश्ता कहते हैं। ये इंसानों की तरह नहीं होते हैं, ये इंसानों से हटकर होते हैं। इनके अंदर गुनाह करने की क्षमता और गुनाह करने की ताकत नहीं होते। ये खाते भी नहीं हैं, ये पीते भी नहीं हैं, न इनके बच्चे होते हैं, न इनकी बीवियां होती हैं। ये इन सब सिफात से बिल्कुल अलग होते हैं, इनको फरिश्ता कहते हैं। ये हर वक्त दो बॉडीगार्ड हमारे साथ मौजूद रहते हैं, एक को मुनकर एक को नकीर कहते हैं। ये इंसान के साथ हमेशा होते हैं। ये बड़ी प्यारी मखलूक है अल्लाह की, ये खाते पीते नहीं। अब बाज इंसान इसी में आकर और इसी जो है गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस जो है अल्लाह की मखलूक है, ये इंसान से बढ़कर है। लेकिन जान लीजिए कि फरिश्ता जो मखलूक है वो इंसान से कमतर है, ये इंसान से बढ़ी हुई मखलूक नहीं है। क्योंकि जब इंसान के पुतले को इस जमीन पर बनाया गया था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि ए फरिश्तों तुम भी सजदा करो। कुरान ऐलान करता है कि शैतानों से, जिन्नातों से कहा गया कि तुम भी सजदा करो, और इस नूरानी मखलूक यानी इंसान को आग ने भी सजदा किया और नूर ने भी सजदा किया है। दोनों लोगों ने इंसान को सजदा किया है। तो जो बड़ा होता है उसको सब सजदा करते हैं, उसके सामने सब झुका करते हैं। तो इससे पता चला कि इंसान जो मखलूक है वो तमाम मखलूकात में बढ़कर है, तमाम से बड़ा है, आला है और औला है। इंसान ये फरिश्तों से भी बड़ा है और जो है आग से बने हुए मखलूक से भी बड़ा हुआ है। अब इस गलत फहमी में कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर जो है वो बशर नहीं बल्कि नूरी मखलूक है। हुजूर को कहते हैं कि हुजूर जो है बशर नहीं बल्कि नूरी मखलूक है। अब भला बताइए कि जो नूरी मखलूक होगा वो शादियां करेगा, वो खाएगा, वो पिएगा। हुजूर न खाते थे न पीते थे, ऐसा था नहीं, बल्कि हुजूर खाते भी थे और पीते भी थे। लेकिन इस बात को वो समझ नहीं पाते हैं और इस गलत फहमी का शिकार होकर हुजूर को कहते ही खालिस नूरानी मखलूक है, हुजूर को नूर से बनाया गया था। गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि कुरान खुद ऐलान करता है कि जो लोग नूर से बने हुए होते हैं वो ना खाते हैं और ना पीते हैं, ना उनके बीवी होते हैं और ना बच्चे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी थे और पीते भी थे, बाल बच्चे बीवियां सब थी हमारे आका की। ये गलत बात है कि हुजूर, हाँ हुजूर जिस्मानी एतबार से तो बशर थे, रूहानी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी थे। जिस्मानी एतबार से अल्लाह ने आपको जो है बशर बनाया हुआ था, लेकिन रूहानी एतबार से आपको नूरी बनाया था। अब जो लोग ये कहें कि हुजूर खालिस नूरी थे वो भी गलती पर हैं, और अगर कोई ये कहे कि हुजूर खालिस बशर थे वो भी गलती पर हैं। बल्कि कहना यह है कि हुजूर जिस्मानी एतबार से बशर हैं, इंसान हैं, और रूहानी एतबार से मखलूक जो है रूहानी एतबार से नूरी है। इसको आप इस तरह से समझिए कि एक इंसान है, उससे किसी ने कहा कि आप पूरब गली में रहते हैं या धानेपुर में रहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? धानेपुर में रहते हैं अगर कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा, पूरब गली में नहीं रहते हो। अब कोई कहे कि पूरब गली में रहता हूँ, कहने वाला कहेगा धानेपुर में नहीं रहते हो, तो इसका जवाब इस तरह दिया जाएगा कि हम मोहल्ले के एतबार से पूरब गली में हैं, लेकिन कस्बे के एतबार से धानेपुर में रहते हैं। कोई आपसे पूछे आप यूपी में रहते हैं या हिंदुस्तान में रहते हैं, अब अगर आप कह दें मैं हिंदुस्तान में नहीं रहता हूँ, यूपी में रहता हूँ, केस लग जाएगा आपके ऊपर। तो कहना यह है कि हम सूबे के एतबार से यूपी में रहते हैं और मुल्क के एतबार से हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी एतबार से बशर थे और रूहानी एतबार से नूरी थे। और एक मखलूक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई
वो इनसे थोड़ा सा हटकर है, उसको जानवर कहते हैं। ये इंसानों से बहुत अलग किस्म के होते हैं, ये इनको मुकम्मल अक्ल नहीं होती है। तीन तो मुकम्मल अक्ल वाले हो गए, एक इंसान, एक जिन्नात, एक फरिश्ते। अब ये मखलूक जो अल्लाह की है वो मुकम्मल अक्ल नहीं रखती। इनको ये तो पता है कि हमको क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, किस तरह से अपने घोंसले को बनाना है, किस तरह से अपने रहने के लिए जगह बनाना है, ये पता है। लेकिन इंसान की तरह मुकम्मल अक्ल नहीं रखते। एक फर्क कुरान ने बतलाया कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो तुम लोग जानवर से भी बदतर थे, जानवरों से भी बदतर हालात थे। इंसान और जानवर में एक फर्क जो है बताकर बात को खत्म की जाए कि एक फर्क यह है कि जानवर कपड़ा नहीं पहनते और इंसान कपड़ा पहनता है। ये फर्क है इंसान और जानवर के अंदर। और बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन एक फर्क मैं रखता हूं कि इंसान कपड़ा पहनता है और जानवर कपड़ा नहीं पहनते। आज आप इस हालात को देखिए कि इंसान को जानवर बनाने की कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है। आज पूरी दुनिया के इस्लामी दुश्मन यही चाहते हैं कि इंसान को जो है जानवर बना दिया जाए। पहले हमारे औरतों की आस्तीनें यहाँ तक हुआ करती थी, धीरे धीरे जब मामला बढ़ा उसके बाद कहने वाले ने कहा कि ये आस्तीन बहुत बड़ी है, यहाँ तक कर लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे मामला बढ़ा, कहा यह भी बहुत बड़ा है, यहाँ तक कर लो। उसके बाद से और मामला आगे बढ़ा, यहाँ तक करवा दिया। ये और नहीं, जानवरों वाली स्थिति तो हमारी बनाई जा रही है। आज हमारे कपड़े यहाँ तक होने चाहिए, औरतों की कलाइयाँ तक जल्दी नजर नहीं आनी चाहिए। हमारी औरतों ने क्या किया, यहाँ तक कपड़े कर लिए। हमारे नौजवानों को भी कपड़े उतारे जा रहे हैं, उनको भी जानवरों की सफ में दाखिल किया जा रहा है। पहले किसी का जींस फटा हुआ नहीं रहता था, आज जो है जानवर बनाने के चक्कर में उनके पहले तो घुटने से नीचे जींस को फाड़ा, उसके बाद ऐन घुटने पे फाड़ दिया और उसके बाद घुटने से ऊपर भी फाड़ दिया। अब बताइए कि अगर ऐसा कपड़ा कोई पहनकर आएगा तो क्या उसकी नमाज मानी जाएगी? मर्द का सतर नाभ से लेकर घुटने तक है और इंसान का जो सदर होता है, जो आजकल के कपड़े निकले हैं, वो जो है इंसान को जानवरों की तरफ ले जाने वाले हैं और वो घुटने से ऊपर फाड़ दिए जाते हैं। तो ये इंसान को जानवर बनाने की मुकम्मल प्लानिंग हो रही है। आप देखिए कि अक्सर मस्जिदों में इस तरह से मिल जाता है कि एक साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और एक साहब आगे नमाज पढ़ रहे हैं। पता चला कि आगे वाला जो नमाज पढ़ रहा है वो ऐसा कपड़ा पहना हुआ है कि पूरे की पूरी स्क्रीन नजर आ रही है और उससे जो है पीछे वाले की नमाज तो खराब हो ही रही है और इनकी तो खराब हो चुकी, क्योंकि नमाज की हालत में अगर आपका सतर खुल गया तो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। एक अल्लाह वाले थे, एक स्टेशन पे एक लड़की को देखा जो डॉक्टरी पढ़ रही थी। वो स्टेशन पे नमाज पढ़ने लगी। वो अल्लाह वाले उससे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ उस डॉक्टर लड़की को बता दो कि मैं उसके इस अमल से बहुत खुश हुआ, क्योंकि स्टेशन पे जहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है वहाँ एक औरत नमाज पढ़ रही है, एक लड़की नमाज पढ़ रही है। जाओ उसको बता दो मैं उससे बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको ये भी बता देना कि तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारी नमाज नहीं मानी जाएगी। वो गए और बताया कि जो है हमारे जो है शेख कह रहे हैं कि आपके अमल को देखकर तो शेख बहुत खुश हुए, लेकिन आपका जो ये अमल है ये अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। उसने कहा क्यों काबिल कबूल नहीं है? कहा आपने पैंट पहन के रखा है और मर्द को जो है घुटना टखना जो है छुपाना है और औरतों को टखने को नमाज के अंदर ढकना है और आपका टखना जो है वो खुला हुआ है क्योंकि आप पैंट पहनी हुई हैं और आपके बाल बिखरे हुए हैं। ये नमाज का आलम है। पता चला कि इंसान को जो है जानवर बनाने की कोशिश हो रही है और इस तरह से ना हमारी नमाज काबिल कबूल हो रही है और ना हमारी रोजे को काबिल कबूल हो रहे हैं। क्योंकि अगर हमसे कोई डायरेक्ट कहेगा कि तुम मुसलमान हो नमाज मत पढ़ो, तुम मुसलमान हो रोजे मत रखो, तो हम नहीं मानेंगे। हमारे अंदर ईमानी जज्बा उभरेगा और हम उसको वहीं पर दफन कर देंगे। तो जब देखा यहूदियों ने और ईसाइयों ने कि इनकी ये हालत है कि ये नमाज और रोजे से मजबूत होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दूसरा अलग से नुस्खा इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने इस तरह के कपड़े और इस तरह से पैंटों का इजाद कर दिया जो आज हमारी नमाजों को और हमारे रोजों को ले डूबते हैं और हम और आप शान से उसका इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ये मौलवी लोग ये तो कफन पहनते हैं, इनको क्या पता, ये क्या जाने इस कपड़े का मजा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इस कपड़े का मजा लेना भी नहीं चाहते हैं। ये कपड़ा आप ही को मुबारक हो, हमें इस कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। जो कपड़ा हमें अल्लाह और रसूल के रास्ते से भटकाए वो कपड़ा ना हमारे लिए जायज है और ना आपके लिए जायज है,
क्योंकि ये मौलवी लोग ये भी आपकी तरह मुसलमान हैं, ये भी आपकी तरह अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। ये इस तरह से कुर्ता पैजामा और इस तरह से सूफियाना लिबास पहनना सिर्फ इन्हीं का काम नहीं है, बल्कि हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जो शरीयत के खिलाफ ना हो। लेकिन आज हम और आप इंसान के शक्ल में जानवर बनते हुए जा रहे हैं। अल्लाह हमारी और आपकी इससे हिफाजत फरमाए। तो 3 मकामात बताए गए जो इंसान को मुकम्मल अक्ल वाले हैं, उसमें सबसे खतरनाक जो मखलूक है वो नजर न आने वाली मखलूक है, जिससे हमारी हिफाजत कैसे होगी अल्लाह के रसूल ने पूरा तरीका उसका बतला दिया। बस जरूरत है कि हम और आप उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको सीखें और उस पर अमल करें, ताकि हमें और आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर इलाज करवाने की जरूरत ना पड़े, किसी बाबा दाई के चक्कर में पड़ने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाइए, अपने पैसे को बचाइए और अपनी इज्जत व आबरू को महफूज रखिए। इसी के अंदर भलाई है और इसी के अंदर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।